Today we are going to discuss the structure of human eye. So let's start our this important topic. Structure of human eye, you know that eye is a very important organ of the body and this organ help us to see the world. इसी की वजह से हम आसपास की सभी चीज़ें देख सकते हैं. जितनी important light है उतनी उससे भी ज़्यादा important जो चीज़ है वो है eye to see the things around us. And in the eye you can see that eye is covered by the different organs or different parts. Like this is the eyelids. This is the structure which is known as eyelid. This eyelids is act as the shutters of the eye. ये आई के अंदर शटर्स की तरह काम करती हैं एंड दीज प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द शॉक्स इंजरीज एंड ब्राइट लाइट. और ये आई को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी तरीके की शॉक इंजरी और एकदम जो ब्राइट लाइट सडनली आई के अंदर ना जाए इस चीज़ से भी प्रोटेक्शन देती है. सो now we will discuss the internal structure of the eye. Internally you can see the eye look like this. This is the internal structure of the eye. जब हम आई को कट करके अंदर से देखेंगे तो हमें आई इस तरीके की दिखाई देती है. इसके बहुत सारे पार्ट हैं. इट हैज़ द 3 layers. 3 लेयर हैं. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इट्स नॉन एज स्क्लेरा. सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं हम स्क्लेरा. इट्स नॉन एज स्क्लेरा. द सेकेंड लेयर इज नॉन एज कोरोइड. The third layer is known as retina. These are the 3 layers. And besides these layers कुछ और parts भी हैं आई के, जैसे in front of this one जो हमारे आगे की तरफ आई का bulges पार्ट होता है, आगे की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है. This region known as cornea. उसे हम बोलते हैं cornea. This cornea is a transparent region. हम इसकी डिटेल स्टडी भी करेंगे. Next part is the pupil, then lens, iris, optic nerve and the ciliary bodies. These all are the important parts of the eye and we will discuss all these part in detail one by one. So let's start with the first part, that is the sclera. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्क्लेरा की. स्क्लेरा is also known as the white part of the eye. स्क्लेरा को हम बोलते हैं white part of eye because ये जो आपको white region दिखाई देता है ना हमारी आइज़ के अंदर, यही white part जो होता है इसे हम स्क्लेरा कहते हैं. It's known as sclera. This outer covering of the eye is called the sclera and is protective tough white layer and is known as white part of the eye. अब इसका function क्या है? The function of the sclera is that it protect the internal part of the eye from the external injury. बाहर से अगर कोई चोट लग रही है हमारे आइज़ को तो वो चोट अंदर तक के पार्ट्स तक ना पहुँचे, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा स्क्लेरा. So this is about the sclera. The next layer is choroid inside the sclera. स्क्लेरा के अंदर की तरफ जो नेक्स्ट लेयर होती है वो नेक्स्ट लेयर कहलाती है choroid. This choroid is a डार्क ग्रे पिगमेंटेड लेयर. ये डार्क ग्रे कलर की पिगमेंटेड लेयर होती है जो स्क्लेरा के साथ अटैच है अंदर की तरफ एट द इनर साइड्स. And the most important thing about the choroid is that it is richly supplied with the blood vessels. Blood vessels हमारी वो vessels हैं जो blood supply कर रही हैं हमारी body में, और through the blood the oxygen and nutrients, सभी तरीके के nutrients और oxygen जो है वो उन्हीं blood vessels के through supply किए जाते हैं. So with these blood vessels the oxygen and nutrients supplied to the eye, and these blood vessels it has large amount of these blood vessels, and this region, this layer choroid region, is also prevent the internal reflection. ये इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी प्रिवेंट करता है. इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट हमारे लेंस से होते हुए आइज़ में एंटर करती है उसके बाद वो अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद वो दोबारा रिफ्लेक्ट ना हो जाए, इंटरनली रिफ्लेक्शन ना हो जाए लाइट का, इस चीज़ को प्रिवेंट करने का काम भी हमारा कोरोइड रीजन ही करता है. सो दिस इज़ अबाउट द कोरोइड. Now let's see the other part. The other part of eye is the cornea. Next है हमारे पास cornea. Cornea क्या है? At the आउटर पार्ट जो हमें आई का बाहर की तरफ से निकला हुआ पार्ट दिखाई देता है ना, जो हमें दिखाई दे रहा है, दिस bulges पार्ट ऑफ द आई इज नॉन एज कॉर्निया. आपने शुरू में पिक्चर में भी देखा था कि आई जो है इट्स अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर से स्ट्रक्चर है, बट शुरू का जो पार्ट होता है वो बल्जिस होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है. इस बल्जिस पार्ट पे जो रीजन प्रेजेंट है इट्स नॉन एज कॉर्निया, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है. इट्स इन कॉर्निया. दिस कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट पार्ट. ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है और प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ स्क्लेरा. is present in front of the sclera, and the function of cornea is that light enters the eye through the cornea. इस cornea से होते हुए ही light हमारे eye के अंदर enter करती है. So this is about the cornea. Now next region is the retina. Retina is the third or the innermost layer of the eye. आई की सबसे अंदर की जो लेयर होती है उस लेयर को हम बोल रहे हैं रेटिना. इट्स नॉन एज रेटिना एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. दिस लेयर इज़ द लाइट सेंसिटिव लेयर. ये लेयर लाइट सेंसिटिव लेयर होती है जिसके अंदर बहुत सारी नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं. नर्व सेल्स जो कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स लेके जाने का काम करती हैं. इसके अलावा
it converts the light wave. What it do, let's see, it converts the light wave to the electrical signals. हमारे आइज में जो भी लाइट आ रही है उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक सेंड करने का काम जो है वो भी रेटिना ही कर रहा है. So it converts the light into the electrical signals and these electrical signals are thus transmitted through the optic nerve. उसके बाद जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक नर्व प्रेजेंट होती है, नर्व जो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएगी. ये भी रेटिना के साथ ही अटैच होती है. तो रेटिना में जो इमेज बन रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर्म हो रहे हैं, दीज सिग्नल्स आर देन ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन. ऑप्टिक नर्व से होते हुए उन सिग्नल्स को ब्रेन तक सेंड किया जाता है. दिस इज़ अबाउट द रेटिना. रेटिना में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे. लेट्स सी, द रेटिना हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. रेटिना के अंदर बहुत लार्ज नंबर में सेल्स होती हैं एंड दीज सेल्स आर द सेंसिटिव सेल्स. और उनके नाम क्या हैं? दीज आर नॉन एज रोड्स एंड कोन्स. You have to keep remember the retina has the large number of cells and these cells are known as rods and cones. इनमें अब cones की क्या characteristics है? कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट. कॉन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट यानी कि रोशनी में, दिन में हमें देखने में हेल्प करते हैं एंड दे कैन ऑल्सो डिटेक्ट द कलर. इसकी वजह से हमें जो चीज़ों का कलर दिखाई देता है वो भी कॉन्स की वजह से ही दिखाई देता है. वेयर एज द रोड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. हमें अंधेरे में देखने के कैपेबल, डार्क में, रात के टाइम पे जो देखने में कैपेबल बनाती हैं वो रोड्स बनाती हैं. इन्हीं की वजह से, रोड्स एंड कोन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स दे आर एबल टू सी इन द लाइट एंड डार्क. लाइक आपको पता है, जैसे अगर हम आउल की बात करें, आउल जो कि रात को देख सकता है. आउल रात को क्यों देख सकता है? बिकॉज उसकी आइज़ के अंदर लार्ज नंबर की रोड्स होती हैं. उसमें रोड्स ज़्यादा होने की वजह से और कोन्स बहुत कम होते हैं जिसकी वजह से वो सिर्फ रात को देख सकता है, दिन में नहीं देख सकता. ओके, सो इस तरीके से जिन एनिमल्स में लाइट सेंसिटिव होती हैं, जो रात को देखने की कैपेबिलिटी होती है, उनमें रोड्स ज़्यादा होती हैं. कॉन्स हमें दिन में देखने के कैपेबल बनाते हैं और साथ में हमें चीज़ों के कलर को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं. तो ये हुई इंपॉर्टेंट बात रेटिना के बारे में. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज आइरिस और इरिस. दिस इज द पार्ट ऑफ द आई विच इज़ प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया. ये कॉर्निया के पीछे का पार्ट होता है एंड दिस इरिस इज ऑल्सो द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. हमारे आई का जो कलर्ड पार्ट है, जिसकी वजह से हमारे आई का कलर होता है, वो इरिस कहलाता है. दिस कलर इज़ ड्यू टू द पिगमेंट. हमारे ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सर्कल के अंदर, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, लाइक जनरली ब्लैक और ब्राउन कलर का जो आई का कलर होता है, दिस रीजन इज नॉन एज आइरिस. उस रीजन को ही हम आइरिस बोल रहे हैं. और ये जो कलर है इज ड्यू टू द पिगमेंट. आई के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से आई का कलर होता है. अब जितना ज़्यादा पिगमेंट होगा आई का कलर ब्लैक या ब्राउन होता जाएगा, और अगर पिगमेंट कम होगा तो आई का कलर ब्लू हो जाएगा. जिन लोगों में आई ब्लू कलर की होती है उनके अंदर ये आई में मिलने वाला पिगमेंट बहुत कम अमाउंट में होता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, दिस आइरिस इज ऑल्सो कंट्रोल द लाइट विच एंटर इनटू द आई. आइरिस ही कंट्रोल करता है कि कैसे लाइट अंदर एंटर करेगी आइज के, कितनी अमाउंट में लाइट को एंटर करवाना है. दैट थिंग इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द आइरिस. पर ये काम आइरिस खुद नहीं कर रहा, ये काम वो करवाता है नेक्स्ट पार्ट से जो होता है प्यूपिल. तो अभी हम प्यूपिल के बारे में भी देखेंगे. जो बीच में आपको ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आइरिस के बीच में, दिस इज द प्यूपिल. तो वो भी हम देखेंगे. सो फंक्शंस ऑफ आइज भी यहाँ पे बताया गया. इट्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल. तो कैसे ये एडजस्ट करता है लाइट के अमाउंट को? बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल. प्यूपिल के साइज को चेंज करवा के लाइट के अमाउंट को डिसाइड किया जाता है थ्रू द आइरिस. So this is about the iris. Now let's see the next part which is pupil. Pupil क्या है? The black hole which is present in our eye. हमारे आइरिस के बीच में जो ब्लैक कलर का होल जैसा प्रेजेंट होता है, दिस ब्लैक कलर होल स्ट्रक्चर, ये ऐसे विजिबल नहीं होती. जब हम अपनी आइज़ पे थोड़ा लाइट मार के देखते हैं तब दिखाई देते हैं, बट इट कुड बी डेंजरस. आप इसे ट्राई मत करिएगा. सो दिस ब्लैक होल पार्ट ऑफ द आई इज़ नॉन एज प्यूपिल एंड इट्स द साइड फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स. यहीं से लाइट हमारे आई के अंदर एंटर करती है. और जैसा कि हमने पहले बात की है कि यही पार्ट डिसाइड करता है कि कैसे लाइट को एंटर करवाना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट विल एंटर. इट्स डिसाइडेड बाय दिस आइरिस बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल. सो प्यूपिल साइज कंट्रोल बाय द मसल्स. आइरिस की मसल्स प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करती है. द प्यूपिल इज द स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस. द आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल
एंड pupils फंक्शन इज टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इन द आई। ये चीज़ें हमने पहले भी देख ली हैं कि प्यूपल के थ्रू ही एडजस्ट करवाया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है कि कितने अमाउंट में लाइट अंदर एंटर करेगी। इस चीज़ को अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। लेट्स सी हाउ द प्यूपल वर्क। प्यूपल इज द होल वेयर द लाइट एंटर्स, हाउ इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, वो चीज़ अब हम देखने वाले हैं। व्हेन द आई नीड्स मोर लाइट मीन्स इफ़ यू आर इन अ डार्क रूम, अगर आप एक अंधेरे कमरे में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत कम लाइट अवेलेबल है एंड योर आइज नीड टू मोर लाइट, आपकी आइज़ को बहुत लाइट की ज़रूरत है ताकि वो आपको अंधेरे में देखने लायक बना सके। उस कंडीशन में प्यूपिल का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, आइरिस जो है वो प्यूपिल को बड़ा करवा देगा। जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर रीजन जो है ये प्यूपिल है जो कि एक्सटेंड हो चुका है, एक्सपेंड हो चुका है, वेयर एज दिस इज द आइरिस। नीचे वाला पार्ट जो ग्रे कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये आइरिस है। आइरिस अब हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि प्यूपिल का साइज बड़ा हो गया है, इंक्रीज हो गया है। सो इन दिस सिचुएशन व्हेन यू आर इन द डार्क रूम, जब आप एक डार्क रूम में हैं तो प्यूपिल एक्सपेंड हो जाता है सो दैट द मोर लाइट कैन एंटर इनटू द आईज एंड वी विल एबल टू सी द थिंग्स, और हम अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं। दिस इज अबाउट द प्यूपिल। अभी और देखते हैं प्यूपिल व्हेन यू आर इन अ ब्राइट लाइट, जब आप बहुत तेज लाइट में हैं और आपकी आइज़ को इतनी लाइट नहीं चाहिए, इन दिस सिचुएशन द प्यूपिल साइज गेट डिक्रीज, प्यूपिल गेट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे यहाँ आप देख सक रहे हैं प्यूपिल का जो साइज़ है बहुत छोटा हो गया है, प्यूपिल में कॉन्ट्रैक्शन हो गया है एंड द आइरिस का साइज हमें यहाँ पे आसानी से दिखाई दे रहा है। सो आइरिस adjust the pupil according to the requirement of light. So this is the way by which the pupil control the amount of the light. When the eye needs less light to enter, when you are in a bright light, the pupil gets smaller. Pupil जो है वो smaller हो जाएगा, allow the less light to enter the eye, ताकि बहुत कम अमाउंट में लाइट आई के अंदर एंटर कर सके। ये हो गई बात प्यूपिल की। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारी आई का, वो है लेंस। लेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि लेंस की वजह से ही तो इमेज बनती है। दिस लेंस इज प्रेजेंट बिहाइंड द आइरिस। लेंस प्रेजेंट है हमारे आइरिस के पीछे। इट जस्ट आइरिस और प्यूपिल, लेंस बिहाइंड द प्यूपिल। जैसे ही प्यूपिल है यहाँ पे हमने देखा था दिस रीजन इज द आइरिस और बीच वाले रीजन को हम बोलते हैं प्यूपिल, और जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल लेंस इज प्रेजेंट। यहाँ पे लेंस प्रेजेंट है। इन आवर आई, इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, द लेंस विच इज प्रेजेंट इज अ डबल कन्वेक्स लेंस। हमारी आइज में जो लेंस होता है वो डबल कन्वेक्स लेंस है, दोनों तरीके साइड से उसकी जो शेप है वो कन्वेक्स शेप होती है। एंड दिस लेंस अलाउड अस टू सी द ऑब्जेक्ट, और यही लेंस हमें ये अलाउ करता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकें, चाहे वो दूर है या फिर पास है। हम सब तरीके के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आई इज द ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट पार्ट है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इट्स ट्रांसमिट द सिग्नल्स। अब कोई भी आई जो लाइट आने से जो भी इमेज हमारे आइज़ में बन रही है, अगर यहाँ से लाइट आ रही है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और उसकी लाइट जब आई पे फॉल करती है, द इमेज विल फॉर्म ऑन द रेटिना। रेटिना पे इमेज बनेगी एंड थ्रू द रेटिना दिस इमेज इज गेट कन्वर्टेड। इस इमेज का जो सिग्नल्स होंगे उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम रेटिना एंड देन इट इज सेंड टू द ब्रेन। उसे सेंड कर दिया जाएगा ब्रेन तक। सो इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और इम्पल्सेस। आप सिग्नल बोले या इम्पल्सेस बोले, इट्स द सेम थिंग। इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। रेटिना से ब्रेन को ट्रांसमिट करता है। एंड हेयर वी विल सी that at one more reason we will discuss, it also creates a area which is known as blind spot. ये एक एरिया भी क्रिएट करता है जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। एंड द ब्रेन टेक्स इन्वर्टेड इमेज। जब ऑप्टिकल सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंच गए हैं, ब्रेन उस सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेगा और फिर उस इमेज के बारे में उस इमेज सिग्नल्स के अकॉर्डिंग एक इमेज फॉर्म करेगा। एंड द इमेज विच इज़ फॉर्म्ड इन अवर ब्रेन इज देन ऑलवेज एन इन्वर्टेड इमेज। आपने जो चीज़ भी देखी है उस चीज़ की एक इन्वर्टेड इमेज आपकी ब्रेन में फॉर्म होगी। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी बनेगी, बट लेटर ऑन इट विल कन्वर्ट इट बैक। बाद में से फिर से कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि हम सही इमेज पहचान सकें। सो दिस इज द ऑप्टिक नर्व विच कैरी द इमेज सिग्नल्स और ट्रांसमिट द सिग्नल्स फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की विच इज़ द ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट हमने अभी भी बात की थी ना रेटिना के बारे में। दिस इज़ द रेटिना लेयर और दिस इज़ द ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व है। तो एट द जंक्शन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना मिलते हैं उस जगह पे एक छोटा सा स्पॉट होता है, एक छोटा सा रीजन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट।
इस ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी रोड और कोन्स प्रेजेंट नहीं होते. एट दिस रीजन नो कोड्स एंड रोड्स एंड कोन्स आर प्रेजेंट एंड दैट्स वाई नो विजन इज पॉसिबल एट दैट साइट. इस जगह पे कोई भी विजन पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई दिस रीजन इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, बिकॉज यहाँ पे कोई भी सेल्स ही प्रेजेंट नहीं है. जब सेल्स प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा. सो दिस इज अबाउट द ब्लाइंड स्पॉट. आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स वी विल डिस्कस सम मोर पार्ट्स लाइक सिलियरी बॉडी और इट इज ऑल्सो नॉन एज सिलियरी मसल्स. दिस इज द रीजन विच हेल्प टू होल्ड द लेंस. जैसे कि आप देख सकते हो सिलियरी बॉडी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. दिस रीजन होल्ड द लेंस इन आवर आइज. ये हमारे आइज में लेंस को होल्ड करके रखने का काम करती है एक फिक्स पोजिशन के अंदर. एंड विद दिस सिलियरी बॉडी यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स भी प्रेजेंट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं सिलियरी लिगामेंट्स. एंड उसके अलावा इन दिस रीजन इन बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में यहाँ पे एक लिक्विड फिल्ड रहता है. दिस लिक्विड इज नॉन एज एक्वस ह्यूमस. इस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर. इन द सेम वे वन मोर लिक्विड इज गेट फिल्ड हेयर. यहाँ पे बीच वाले पार्ट में भी एक लिक्विड फिल्ड रहता है जिसे हम बोलते हैं विट्रस फ्लूइड. इट इज नॉन एज विट्रस फ्लूइड. इट्स फिल्ड बिटवीन द रेटिना एंड आई लेंस. ये रेटिना और आई लेंस के बीच का रीजन होता है जहाँ पे ये फ्लूइड फिल्ड रहता है. एंड दिस फ्लूइड कीप आवर आइज वेट. ये हमारे आइज को वेट रखता है. इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड इट्स ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट द 2/3 वॉल्यूम ऑफ द आई. ये हमारे आई के 2/3 वॉल्यूम तक फिल रहता है. एंड दिस लिक्विड इज और दिस फ्लूइड इज नॉन एज विट्रस फ्लूइड. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट ऑर्गन. वी डिस्कस द स्क्लेरा, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, आइरिस, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, कोरोइड. हमने सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, सभी इंपॉर्टेंट पार्ट आई के डिस्कस कर लिए हैं. दैट्स ऑल अबाउट योर टॉपिक.